my dear students, a very charming good morning to all of you. How are you doing all? I think all of you are marvelous. I'm also marvelous too, as well as you are. Today is your lecture number 134 and I'm going to discuss the new topic, that is literary devices. It is very important topic for your 9th, 10th and in next classes also to understand the literary devices, because in your exam a 1 mark question or a 2 mark question always came find out the literary devices or the poetic devices used by the poet in the following stanza of the poem or in the following paragraph. So you have to understand this concept. By the end of this video you are able to recognize majorly coming literary devices which are used by the poet to express his ideas in writing content. You are able to recognize the instrument which are used by the writer to write the poem in order to show his creativity and in order to understand the concepts. Basically, we will discuss majorly commonly and use poetic devices. So before starting my lecture, I will discuss the thought. What is the thought of the day? आज का thought है बेटा, the success is not the end. The success is not the end and the failure is not fatal. The success is not the end and the failure is not fatal. It is only the courage that always count. मीन्स सक्सेस अगर आप सोचते हो कि एंड हो गया है कि मुझे इतना अपना लाइफ में करना है, आई हैव टू अचीव दिस एंड इट इज़ माई फाइनल, इट इज़ माई सक्सेस, आई एम सक्सीड. नो, सक्सेस कभी भी एंड तक नहीं मिलती है, ऑनगोइंग है. सक्सेस जितना आप करते जाओ उतना ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है. हर लेवल पे अचीवमेंट ऑफ सक्सेस जो है वो डिफरेंट होता जाता है. एक छोटा सा बच्चा, इफ़ ही इज़ एबल टू वॉक ऑन हिज फीट in one first birthday, that is his success. After 20 to 25 years, if you are able to achieve your goal, you become a IAS officer, you become any kind of person in your profession, that is your success. After how you succeed in your family, how you treat your children, that is a success. At different stages success is different and it's never end. And if you think that failure is very fatal, I failed, कि मैं फेल हो गया हूँ और मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाया, या मुझे कुछ ऐसा है जो मैं अचीव करना चाहता था वो नहीं मिला, एंड आई वॉज इन वेरी डिस्ट्रेस, like I want to achieve an IAS officer and today I was not that, I am doing something different. So you think that it is my failure. No, it is not a failure and the failure is never be fatal. इतना भी बुरा नहीं होता कि फेल हो गए हैं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे. द करेज, हर एक सिचुएशन में अगर छोटे बच्चा हो, अगर वो चल नहीं पा रहा है एंड 1.5 साल में 2 साल में ही इज़ एबल टू डू, और हिम्मत कर रहा है, ही इज़ डूइंग दैट थिंग. इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग दैट थिंग, आप कोई भी टॉपिक में आपको दे रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग ऑन दैट, इधर यू आर स्पीकिंग गुड और इधर यू आर नॉट स्पीकिंग गुड, बट यू आर ट्राइंग, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, यू आर डूइंग करेज, that always count. वो हमेशा count होता है, because a courage always make you lead in any kind of situation. कभी भी हमें अपने जीवन में अगर लीड करना है और हमारे पास हिम्मत है तो you always be succeed, and success is never and the failure is not fatal. The courage is the thing which always counts. So believe in yourself and always do courage, always keep courage, हिम्मत रखनी चाहिए, and fight with all in every kind of situation in your life. So today I am going to start the poetic devices or you can say the literary devices. अब ये literary devices क्या है बेटा, आप अपनी बुक्स को उठा के देखेंगे, you will see, चाहे छोटे बच्चे से स्टार्ट करें या हम अपर लेवल पे जाए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएम मिलती है हमें देखने के लिए. कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जिसको जो लिखा जाता है, जो राइटर होता है उसको लिखने के लिए डिफरेंट थीम्स का यूज़ करता है, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है. जब हम उसको पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड एंड वी नो दिस काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस, और अगर हमें ये लिटरेरी डिवाइस पता है तो वी आर गेट टू नो व्हाट इज पॉइंट वांट टू से, कि पॉइंट हालांकि कहना क्या चाह रहा है, हम उसको इजीली ग्रास्प कर सकते हैं व्हेन वी नो दिस पोएटिक डिवाइसेस. तो राइटर जो है इन डिवाइसेस का यूज़ करता है अपनी पोएम को एनहांस करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा क्रिएटिव दिखाने के लिए, एंड टू शो एंड टू एक्सप्रेस वट एवर ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस. वो
एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ों को इन पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करके. इन योर लाइफ यू विल सी व्हेन यू रीड द पोएम or any kind of prose and any kind of stanza or paragraph, you will know डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्किल. जब आप अपने चैप्टर उठाएंगे इंग्लिश की बुक में तो आपको अलग अलग राइटिंग स्किल से पता चल जाएगा कि पोइट क्या कर रहा है, इस चैप्टर में वो क्या बताना चाह रहा है. अब ये जो पोइट जो है वो इन चीज़ों का जो प्रयोग कर रहा है, इन चीज़ों को जो वो बेसिकली यूज़ कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, और डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन दिखाता है. कई बार जो पोइट राइटर है वो कंपेयर करता है, लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करता है. और अगर हमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पता है तो वी गेट टू नो कि इसका कंपैरिजन शो कर रहा है. समटाइम क्या होता है कि साउंड का रिपीटेशन होता है, वॉवल साउंड रिपीट हो रहे हैं. समटाइम ऐसा होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, तो साउंड का रिपीटेशन होता है. कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन होता है, कई बार साउंड का रिपीटेशन होता है, कई बार एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है, कई बार वर्ड रिपीट होते हैं, कई बार फ्रेजेस रिपीट होते हैं. और पोइट जो है उसको लिखता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही फ्लो में उसकी पोएम होती है. और सम टाइम ऐसा होता है कि व्हेन ही राइट द पोएम एट द स्टार्टिंग लाइन ही टेक सम ब्रेक एंड देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, एंड यू विल फाइंड अ डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस इन डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन. हर एक लाइन में आपको कोई ना कोई लिटरेरी डिवाइस मिल जाता है. तो जब आप ये कॉमनली लिटरेरी डिवाइसेस को समझ लेंगे तो आप किसी भी पोएम में इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे पोएटिक डिवाइसेस. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट डिवाइसेस, व्हाट आर द एग्जांपल्स, एंड हाउ वी गेट टू रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस video. So watch the video till the end, then you are able to find out all the kind of literary devices and never find any kind of problem in your upper classes in this matter. So I am going to start literary devices. अब literary device basically क्या है? Literary device are basically techniques है या instruments है जिनका use किया जाता है राइटर के द्वारा इन देयर राइटिंग. वो जब भी कुछ लिखते हैं तो उसमें ये टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. अब इनका यूज़ किया जाता है ताकि हाईलाइट किया जाए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कि वो क्या कंसेप्ट दिखाना चाह रहा है, अपने टेक्स्ट में वो क्या बताना चाह रहा है, वो मेन मेजर थीम क्या है पोएम की, एंड स्ट्रेंथन द नरेटिव, व्हाट ही नरेट, जो वो बता रहा है वो उसको और ज़्यादा मजबूती देता है. जब हम इन पोएटिक डिवाइसेस का पोइट जो है वो यूज़ करता है तो इट विल गिव द स्ट्रेंथ एंड हेल्प रीडर, और रीडर्स की मदद करता है जिससे वो कैरेक्टर को कनेक्ट कर सके और क्या पोएम की और या क्या चैप्टर की या पोर्स की या प्रोज की क्या थीम है उसको वो अंडरस्टैंड कर सके. तो बेसिकली लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है राइटिंग को एनहांस करने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, नरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, और रीडर कनेक्ट कर सके कैरेक्टर और थीम्स को और टेक्स्ट को समझने के लिए लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है. सेकेंडली, पोएम का फ्लो अच्छा सा हो सके, इम्प्रूव हो सके और राइटिंग में एक पेसिंग हो सके, गैप यूज़ करके. जैसे हम बोलते हैं इफ़ आई टॉक इन फ्लो मैनर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इफ़ आई टेक अ प्रोज, इफ़ आई टेक अ ब्रेक, and if I highlight this thing by using my expression, it will become more creative. मेरे बोलने के तरीके से वो डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव हो जाएगा. एंड इफ़ आई एम टेकिंग दिस पोज एंड इफ़ आई एम हाईलाइटिंग द थिंग्स, तो दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस. यही लिटरेरी डिवाइस है कि अगर मैं किसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, कहाँ मुझे उतार चढ़ाव रखना है, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, तो इनका यूज़ किया जाता है फ्लो और पेसिंग के लिए. कॉमनली लिटरेरी डिवाइस तो बहुत सारे हैं, बट हम ऐसा सोचें कि भाई ये मेटाफर है, एलिट्रेशन है, सिम्बली है, इट विल कम इन योर एग्जाम. इट इज़ नॉट. देयर आर द लॉट ऑफ काइंड ऑफ literary devices and we will understand all the literary devices by alphabetically order. Alphabetically order से अगर हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा और आप हमेशा इसे भूलेंगे भी नहीं. तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से मैंने एक्सप्लेन करा है, पर यहाँ मैंने मेजरली जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं पोएम में उनको लिखा है, जैसे स्माइली, सिम्बली, मेटाफर, सिम्बॉलिस, इलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, फॉरशैडोइंग, सटायर, onomatopoeia, metaphor, hyperbole, assonance, consonance, irony, onomatopoeia, enjambment, paradox, imaginary, rhythm, apostrophe, allusion, meter, repetition, rhetorical questions, rhyme, rhythm, sonnet. These are the major
literary devices which are used in every kind of poem. So I'm going to start alphabetically. Firstly, we will discuss all the poetic devices which came from A, and then we will discuss which came from C, E, like we will do alphabetically. First, your poetic device is alliteration. Alliteration very simple and you will understand carefully. देखिए, it is the occurrence of the same sound at the beginning of the adjacent and the closely connected word. अब देखिए आपने literary device को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि जो poet है, जैसे एक word है Belinda and in the poem he used Belinda, and nextly he used Winda, like विंडा को ही उसने बेलिंडा लिख दिया, तो उसने उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस कर दिया ताकि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मोड आ जाए और उसको समझने में अच्छा लगे, तो उसने डिफरेंट तरीके से पोइट्रिक डिवाइसेस का यूज़ करा, चेंजेस करे जिससे रीडर का जो है इंटरेस्ट बने उसको समझने में। अब पहला आपका लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन जो है वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है कि पोइट ने जो है कंपैरिजन कर रहा है किसी के साथ, नो इट इज़ नॉट अ कंपैरिजन। कई बार ऐसा होता है कि जब कंपैरिजन नहीं होता, साउंड रिपीटेशन होता है। क्या रिपीटेशन होता है? साउंड। इट इज़ द अकुरेंस ऑफ द सेम साउंड। एक ही साउंड आपका स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। दो वर्ड एक साथ हैं, क्लोजली कनेक्ट है, और जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, वो दोनों सेम है, सेम साउंड है, तो वो आपका एलिट्रेशन है। या फिर मैं कहूँ एडजेसेंट के एक शुरू में है और दूसरा वर्ड उसके एक वर्ड के बाद है। अब इन दोनों में सेम साउंड आ रहा है तो भी ये एलिट्रेशन है। अब ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, वी विल सी द एग्जाम्पल। लाइक एग्जाम्पल, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूट। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, है, हार्ट है साउंड आ रहा है, एंड देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका एच से स्टार्ट हो रहा है साउंड आ रहा है, तो इन दोनों वर्ड में एच और सेम साउंड से शुरू हो रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। एक सिंगल लाइन में, सेम लाइन में अगर दो वर्ड जो है आपके या तो क्लोजली कनेक्टेड हो, एक साथ लिखे हुए हो, या एडजेसेंट एक वर्ड के बाद हो, तो और उनका सेम साउंड हो, साउंड सेम आए, तो वो आपका एलिट्रेशन होता है। कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। सेकेंड है आई सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूट। सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड, सम, these are the closely connected word and you are seeing that save, some, तो इन दोनों वर्ड्स में साउंड जो है वो सेम हो गया, तो इसका मतलब ये भी आपका एलिट्रेशन है, जिसमें साउंड का बेसिकली रिपीटेशन किसका होता है? साउंड का। नेक्स्ट आप देखिए, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई इफ टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, किसी ने कहा कि वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा फायर में। विल, वर्ल्ड विल, तो इसमें देख रहे हैं वर्ल्ड और विल, वो सेम साउंड आ रहा है वर्ड्स में, लाइक। और नेक्स्ट है हु फेवर्स इन फायर, हु फेवर्स इन फायर, तो आपने देखा कि ये दो वर्ड से क्लोजली कनेक्टेड है, और से स्टार्ट हो रहा है, फेवर फायर, तो और फा आपका क्या हो गया? अलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट योर लिटरेरी डिवाइसेस एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेटा? यहाँ जो अभी हमने पढ़ा वो था रिपीटेशन ऑफ वर्ड का रिपीटेशन था विद द सेम साउंड सेम था, वर्ड और अल्फाबेट सेम था और साउंड सेम था, लाइक फेवर, फायर, फा। इस तरीके से विल और वर्ल्ड, डब्लू आ रहा था और वो सेम साउंड आ रहा था, इसलिए वो एलिट्रेशन था। अब आ गया है नेक्स्ट एनाफोरा। अब एनाफोरा में क्या होता है बेटा? रिपीटेशन होता है वर्ड का या किसी फ्रेज का, या तो कोई वर्ड बार बार रिपीट होगा
या फिर कोई फ्रेज बार बार रिपीट होगा, लेकिन वो कब शुरू होगा? बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, जब पोएम लिखी जाएगी स्टार्टिंग के सीरीज में वर्ड रिपीट हुआ तो, लाइक sentence, some say the word will end in fire, some say in ice, for what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. Some say in the beginning of the series, जब start हुआ, some say these are the words, and again some say in ice, some say the world will end in fire, some say in ice. तो एनाफोरा क्या है कि या तो वर्ड आपका रिपीट हो रहा है या कोई फ्रेज आपका रिपीट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में, इट इज एनाफोरा. एंड व्हाट इज एलिट्रेशन? जब आपका वर्ड का अल्फाबेट का साउंड रिपीट हो रहा है, या तो वो वर्ड क्लोजली कनेक्टेड है या फिर वो एक के बाद एडजेसेंट है, एंड दोनों अल्फाबेट का साउंड सेम आ रहा है, लाइक वर्ल्ड will, fire, like favor, fire, world, will, saved, some, has, heart. So this is alliteration and it is a word. Some say, this is an anaphora. I think alliteration and anaphora has been clear to you. Next, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी एनाफोरा का. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. I think I could turn and live with animals. I think कि मैं रह सकता हूँ एनिमल्स के साथ. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. So I think I stand. This is a word, or I can say word I. This is the same word I, and it is repeated in the beginning of the series. I think I stand. So it is an anaphora. Next, your literary device is assonance. And what is assonance? इसमें भी बेटा कोई कंपैरिजन नहीं है. आप अपने माइंड में ये मत सोचिए कि इन लिटरेरी डिवाइस देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन ऑफ द थिंग्स. No, sometimes it is a repetition of words, sometimes it is a repetition of phrases, sometimes it's the repetition of same sound, and sometimes it is a repetition of same sound and diphthong. You will see. अब है एसोनेंस. अब एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल. अभी हम रिपीटेशन ही चल रहे थे, पहले सेम साउंड रिपीटेशन देखा हमने क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में, उसके बाद हमने सेम वर्ड और सेम फ्रेज को देखा इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में. अब हम नेक्स्ट रिपीटेशन देख रहे हैं कि अगर आपको वॉवल का रिपीटेशन मिला एंड यू एवरीवन नोज देन व्हाट इज अ वॉवल, ए ई आई ओ यू. बट बेटा आपको एक माइंड में ये चीज़ रखनी है दैट वॉवल ए ई आई ओ यू तो होता है, इट इज क्लियर, बट इनका जो साउंड है इट यू विल यूज द हिंदी कंसेप्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द साउंड. आप ए का साउंड जो होता है ए लाइक ए से जो आप बोलते हैं एंट, इसी तरीके से आपको इस टाइम पे हिंदी का जो है साउंड से रिकॉग्नाइज करना है, लाइक एम ए, आई हैव डन एम ए इन इंग्लिश, एम ए, एम नज़र आ रहा है और अब यू विल सी दैट इट इज़ अ कॉन्सोनेंट कि मैडम ये तो कॉन्सोनेंट है एंड आपने उसको मार्क नहीं करा. नहीं, साउंड क्या है? एम ए. तो साउंड को हिंदी से करेंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, वरना आप ए ई आई ओ को देख के सीधा सर्कल कर देंगे. तो इसमें अगर वॉवल का आपको रिपीटेशन मिल रहा है या डिप्टोंग साउंड इन वन और मोर वर्ड्स फाउंड क्लोज टुगेदर, वर्ड जो होंगे वो आपस में क्लोजली होंगे, एक के बाद एक होगा, क्लोजली होंगे, और रिपीटेशन किसका होगा? वॉवल साउंड का होगा. जैसे कि द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on shook और साउंड आ गया, डाउन ऑन शुक उक. तो इसमें जो साउंड है शक अ साउंड आ रहा है, ऊ साउंड आ रहा है, तो ये डाउन ड अ साउंड आ गया, ऑन आ साउंड आ रहा है, तो ये आपका वॉवल रिपीटेशन हो गया विद द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड. नेक्स्ट यू विल सी. Some say the world will end in fire, some say in ice, for what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. I hold
hold with those. Who? I hold with those. Who? तो इसमें आप देख रहे हो रिपीटेशन ऑफ ओ, वॉवल हो रहा है, वॉवल का रिपीटेशन हो रहा है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में, तो दिस इज अ एसोनेंस. नेक्स्ट है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ही स्टॉक्स इन ई, हिज ई, विविड वी ई, विविड ई, स्ट्रिप्स इप्स, इप्स ई, ई साउंड आ रहा है. तो यू विल सी इन हिज विविड strips. So this is a repetition of I sound, and you know I sound, that is I का sound क्या होता है? E. Like when you pin the thing, E sound आता है ना. तो this is a sound. आपको sound भी remember होना चाहिए कि इसका क्या sound है. Like A का sound होता है A, T का sound T, 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 T. Like S का sound hiss, and I का sound E. तो ये जो ई साउंड आ रहा है और वॉवल साउंड है, सो इट इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड, दैट्स व्हाई इट इज अ एसोनेंस. एसोनेंस इज बेसिकली द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. लाइक नेक्स्ट इज योर कॉन्सोनेंस. पहला था एसोनेंस, नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस. ये इसी का ही लाइक अ ब्रदर. इट इज द रिपीटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड. पहले हमने पढ़ा कि वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है. अब सेम स्टैंजा में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो देन इट इज अ कॉन्सोनेंस. अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? जब आपको एक ही लाइन, एक ही स्टैंजा में, एक ही लाइन में जब आपको कॉन्सोनेंट नज़र आए, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वो आपका कॉन्सोनेंस होता है. दिस इज अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स विद इन अ सिंगल लाइन, विद इन अ सेम स्टैंजा you will find a specific consonant sound, then it is a consonant. Like he stalks in his vivid strip, he stalk. अब इसको बेटा हिंदी से ही आप इसको साउंड को रिकॉग्नाइज करना, बिकॉज कई बार आपको कॉन्सोनेंट नज़र आता है बट उसका साउंड वॉवल हो जाता है, तो वो कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस नहीं आएगा, उसमें एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस आएगा. लाइक ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. स्टॉक, स्टॉक्स, स्टॉक, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये कॉन्सोनेंस हो गया. और इसी तरीके से मैंने जब आपको एसोनेंस बताया था, इन हिज विविड स्ट्राइप्स इप्स, तो इन हिज विविड स्ट्रिप्स, तो ये आपका वॉवल साउंड था, तो ये एसोनेंस था. और कॉन्सोनेंस क्या है? स्टॉक्स और स्ट्रिप्स. तो आप एक ही स्टैंजा में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंडली, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled, and they all looked around. Meow cried Link, and oh cried Meow cried Link, and oh cried Belinda, for there was a parrot climbing in the window. सडनली, इसमें आपको और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस दिख रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे, बट हमारा अभी मेन फोकस कॉन्सोनेंट्स पे. तो यू विल सी सडनली, सडनली, अ नेस्टी, एस्टी साउंड. सडनली, नेस्टी साउंड. तो इट इज अ कॉन्सोनेंस व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन a single line or in a same stanza, when there is a close proximity, then it is a consonance literary device. I think ये 4 literary device आपको clear हो गए होंगे. And the 5th literary device, that is your enjambment. Enjambment. अब enjambment क्या होता है बेटा? कई बार poet इस तरीके से लिखता है कि when we start reading the poem, couplet of line use करता है. like he start एक पोएम है, पूरी प्रॉपर पोएम का एक स्टैंजा जो होगा 4 लाइन का होता है. जब वो स्टार्ट करता है तो बीच में वो कोई प्रोज नहीं ले रहा, रुक नहीं रहा, और सीधा इसने यहाँ से शुरू करा और यहाँ पर फुल स्टॉप आया. कंटिन्यूएशन में व्हेन वी रीड द होल पोएम, देन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग. दिट इज अ enjambment, when there is a no prose, there is no break, there is no stop, and when we start the poem and it will end at the end, we get understand the meaning. That is the enjambment. लाइक इट इज़ द कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन होता है इसमें सेंटेंसेस का लगातार कंटिन्यूएशन होता है लाइन के बियॉन्ड.
और लाइन जो होती है बीच में ब्रेक नहीं होती है, और ये जो कपलेट होता है, स्टेंजा होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कोई पोज नहीं होता, एट द एंड तक चलता है। लाइक एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had shoot। इसको जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इसमें कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो यू हैव टू रीड द होल। दिस इज अ enchantment when there is a couplet of line and you have to read the poem in a continuation। लिटरेरी डिवाइस से हमें ये भी पता चलता है कि हमें पोएम को कैसे रीड करना है, कैसे उसके मीनिंग को समझना है। अब देखिए सिर्फ 2 लाइन है। फ्रॉम व्हाट आई इफ टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम What I if tasted of desire I hold with those who favor fire। कई बार 2 लाइन में भी enchantment नजर आता है। From what I if tasted of desire I hold with those who favor fire। ये दोनों को एक साथ ही रीड करना है। कॉमा का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन यहाँ पर स्टॉप हुई है या पोज लिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ लाइन, ये दोनों लाइन एक साथ बोली जाएगी। From what I if tasted of desire I hold with those who favor fire। तो दिस इज ऑल्सो enchantment। enchantment का मतलब ये नहीं है कि 5, 6, 7, 8 लाइनों में आपको नजर आए, आपको 2 लाइन्स में भी enchantment नजर आ सकता है। when you have to read in continuation। जब आपको एक continuation में रीड करना है, there is no break, there is no pause, then it is a enchantment and the poet used while writing his poem। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। His talk in his vivid strip, the few step of his sketch his talk in his vivid strip, the few step of his sketch on patch of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पर कॉमा का मतलब ये नहीं है कि जो राइटर है उसने स्टॉप किया, नो, ये कंटिन्यूशन में ही एक दूसरे से लाइन कनेक्टेड है। His talk in his vivid strip, the few step of his sketch on pad of velvet quiet in his quiet rage। और you will see that at the end there is a full stop, that is also enchantment। ये भी आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? enchantment। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड हाइपरबोले। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपका लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोले। हाइपरबोल मीन्स कई बार ऐसा होता है when we use to exaggerate the things, we use लॉट ऑफ अ हाई वर्ड टू एक्सप्रेस द थिंग। मतलब जब पॉइट जो है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जिससे उस चीज़ पे हाईलाइट हो, उस चीज़ पे फोकस जाए, तो उसको हाइपरबोले बोलते हैं। डेफिनेशन क्या? इट इज़ एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट दैट एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल जो मीनिंग है उसको और सिग्निफाइज करने के लिए, और ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए उसको जो एग्जेजरेट कर दिया जाता है, हाइपरबोल कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, वो हाइपरबोल होता है। यू विल सी एंड अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। लाइक आई एम सो हैंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम सो हंग्री तो आपको लगेगा कि मैम भूखी, आई एम हंग्री। लेकिन मैं इफ़ आई वांट टू एक्सप्रेस इस हंगरनेस को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं इतनी हंग्री हूँ दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं एक हॉर्स खा सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आई विल ईट द हॉर्स। means you have to understand that a horse is a very big animal and there is a hungerness is that much that I could eat that। तो I just using exaggerated word to identify what hungerness, hungerness को specify और significant करने के लिए मैंने क्या word use करा? I could eat a horse। तो this is a hyperbole। नेक्स्ट सेंटेंस है, he feels buried under a mountain of work। he feels buried under a mountain work। एक पर्सन है, उसने बोला आई एम सो टायर्ड विद द वर्क, कि मैं काम करके बहुत थक गया हूँ। तो यू थिंक दैट ही इज, लेकिन ये वांट टू शो दैट कि इतना मुझे काम मिला है दैट आई फील कि मैं एक बरीड हो गया हूँ, बिल्कुल मतलब दफना दिया गया हूँ इन द माउंटेन ऑफ वर्क। और माउंटेन कितना बिग होता है, उसके अंदर मैं दब गया। आई बरीड अंडर द माउंटेन ऑफ वर्क। तो दिस इज अ हाइपरबोल एंड इट इज शोइंग दैट हाउ मच आई टायर्ड, कि मैं कितना टायर्ड हूँ। तो दिस इज अ हाइपरबोल। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लिप फॉर अ वीक। अब मैंने बोला कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो आप इस बात को नॉर्मली लेंगे दैट आई एम टायर्ड। लेकिन मैंने बोला मैं इतनी टायर्ड हूँ कि मैं जो है 1 हफ्ते के लिए सो सकती हूँ। एंड यू कैन इमेजिन कि 1 हफ्ते के लिए कोई कितना सो सकता है। तो दिस इज अ हाइपरबोल एंड इट इज शोइंग दैट पर्सन इज हाउ मच ही इज टायर्ड दैट ही कुड स्लिप फॉर अ वीक। तो जब हम अपनी लाइफ में व्हेन वी
exaggerate the things to show that thing, to signify that our mode, then it is a hyperbole. So it is a hyperbole literary device. नेक्स्ट इज योर लिटरेरी डिवाइस दैट इज इमेजरी. अब इमेजरी आपको देख के ही पहचान में आ रहा है कि इमेजिनरी जो है वो एक तरीके से कल्पना होती है. कई बार ऐसी पोएम्स होती हैं व्हेन यू रीड दैट पोएम अ सीन ऑफ विजुअलाइजेशन, अ सीन केम इन योर माइंड, आपके माइंड में एक पिक्चर आने लग जाती है, आपको पता लगने लगता है, यू जस्ट स्टार्ट इमेजिन, आप उसको इमेजिन करने लगते हैं. तो पॉइट जो होता है ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ करता है टू शो his or her imagination, अपनी इमेजिनेशन को शो करने के लिए. लाइक इट अपील्स टू रीडर सेंस, वो रीडर को सेंस करने में हेल्प करता है थ्रू हाईली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में जो है वो स्टैंजा को डिस्क्राइब किया जाता है, इसे विजुअली डिस्क्रिप्टेड, और माइंड में हमारे एक विजुअल पिक्चर आने लग जाती है. और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिससे फिगर आउट किया जाता है. व्हेन आई एक्सप्रेस दैट थ्रू द स्टैंजा, यू जस्ट इमेजिन, यू स्टार्ट इमेजिन एंड यू कैन ड्रॉ द पिक्चर. आप इमेजिन करने लगेंगे, इवन यू कैन ड्रॉ द पिक्चर. आप उस सीन को पिक्चर के थ्रू जो है ड्रॉ भी कर सकते हैं. इसी तरीके से पॉइट जो है व्हाट दे आर इमेजिन दे स्टार्ट राइटिंग दैट. वो एक डिस्क्रिप्टेड लैंग्वेज में उसको जब राइट करते हैं, हाईली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हाईलाइट करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज में करते हैं, तो वो इमेजिनरी होता है. यू कैन सी विद दिस एग्जाम्पल, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स. अब मैंने बोला कि लास्ट नाइट, कि कल रात, आई वॉज सिटिंग इन द बालकनी एंड आई वॉज watching that the night is fresh and the whole moon shining. तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ गई कि मैडम जो है बालकनी में बैठी हुई है और नाइट बिल्कुल फ्रेश है और मून शाइन कर रहा है. यू कैन ड्रॉ दैट पिक्चर. तो दिस इज़ अ फिगरेटिव एंड दिस इज़ अ इमेजिनरी विच आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर इमेजिनिंग दैट. आप उसको इमेजिन कर रहे हैं. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीफ एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. तो इसमें पॉइंट जो है वो ट्राई कर रहा है टू क्रिएट द सीन इन विच शी इज ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग. जो उसके आसपास चीज़ें हैपन हो रही हैं एंड ही इज एक्सप्रेसिंग दैट with this line, the night is fresh and the whole moon shines. So this is a imaginary. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इस तरीके से आपको लिखा तो आप भी इमेजिन करना. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, द पिस्टल in his right, and he held in his teeth as cutlass bright. His beard was black, one leg was put. It was clear that the pirate meant no good. अब हमें ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो it is a description of the pirate. Pirate का description. All of you know what is the pirate. Pirate is the person who rowed the boat, जो बोट को रोड करता है. तो पायरेट के बारे में है कि लाइक किसके हैंड में जो है वो लेफ्ट में भी और राइट में भी एक पिस्टल है. उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक है, उसका एक लेग जो है इट वॉज वुड, वो वुड का है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एज कटलेस ब्राइट. तो ये इमेजिनरी है अबाउट द अपीयरेंस ऑफ पायरेट, एंड व्हेन यू रीड इट यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ पायरेट. तो दिस इज द इमेजिनरी कि इमेजिन किया गया है, और उस पोएम में जो पैरेट था वो कैसा है, उसके हैंड में क्या है, इस तरीके से इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस का इसमें यूज़ करके इमेजिनेशन दिखाई गई है. तो दिस इज अ इमेजिनरी डिवाइस. और whenever you see that there is a imagination, you will write that the imaginary device has been used by the poet to write this poem. नेक्स्ट इज इन्वर्जन. इन्वर्जन आपको देख के ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को उल्टा पुल्टा कर देना. मीन्स व्हेन द समथिंग यू फील लाइक हॉच पॉच, कि इसको इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन जो पॉइट ने रिदम बनाए रखने के लिए, मीटर बनाए रखने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उसमें कुछ चेंजेस कर दिए. लाइक आपको पता है कि पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है. मैंने बोला कि एक ब्यूटीफुल गर्ल है, अब ब्यूटीफुल गर्ल इस तरीके से है, अब ब्यूटीफुल गर्ल. अब पॉइट जो है ब्यूटीफुल को बार बार हाईलाइट करना चाह रहा है, बार बार रिदम बनाना चाहता है ब्यूटीफुल वर्ड से, तो उसने एक लाइन में लिख दिया गर्ल ब्यूटीफुल. तो व्हेन ही वांट टू मेक द रिदम और यू कैन से द मीटर, ही इज जस्ट प्लेसिंग द वर्ड एट डिफरेंट प्लेस. कि ब्यूटीफुल आगे होना चाहिए था, उसने बाद में यूज़ कर दिया क्योंकि उसको उस वर्ड से रिदम बनानी थी. तो इसी को इन्वर्जन कहते हैं. इट इज़ आल्सो नॉन एज एनास्ट्रॉफी. एनास्ट्रॉफी का मतलब भी इन्वर्जन होता है. ये वो टेक्निक है जिससे चीज़ों को रिवर्स किया जाता है, और रिवर्स इसलिए किया जाता है ताकि वो एम्फेसिस बनाए रखे, इफेक्ट हो, या फिर मीटर. मीटर का मतलब क्या होता है, उसकी पोएम में रिदम बनी रहे. एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. इफ़
you should if even you should go by chance to jungle in the east, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should you to go by chance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know that it is an Asian lion. तो इसमें जो है इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप बाय चांस जाते हैं टू जंगल इन द ईस्ट, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस इन द जंगल एंड इफ देयर should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is an Asian lion. तो उसको कहीं ना कहीं रिदम बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, आप जो है बाय चांस वहाँ जाते हैं टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट में इफ़ देयर शुड टू यू, तो इसमें जो वो यू को हाईलाइट कर रहा है और उसके लिए उसने जो वर्ड्स को है कहीं ना कहीं प्लेस जो करा है इधर उधर करा है. इफ़ यू फाइंड अ हॉच पॉच मैनर देन इट इज़ अ इन्वर्जन. जैसे कि ये व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल, नॉर्मली क्या होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज इट, सॉरी व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसमें इट इज़ लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, तो नॉर्मली क्या होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज इट, तो इन्होंने इट इज़ कर दिया. इसी तरीके से वेयर वर इन द वर्ल्ड वर यू, या इसको ऐसे होना चाहिए था वेयर वर यू इन द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड में कहाँ हो, तो उन्होंने इस तरीके से लिख दिया. ये यू के साथ रिदम बनाना चाहते हैं या इज़ के साथ रिदम बनाना चाहते हैं, वेयर इन द वर्ल्ड वर यू, हाउ वंडरफुल द वेदर इज टुडे. अब मैं ऐसे बोलूँगी टुडे इज़ वेरी वंडरफुल वेदर, तो ऐसे ना लिख के इसने लिखा हाउ वंडरफुल द वेदर इज टुडे. तो ही इज़ highlighting the thing by placing or by doing hodgepodge or by placing the word in a reverse manner. When you see that a kind of reverse manner has been used, so this is a kind of inversion has been used in the poem. और ये जो है बेसिकली राइटर क्यों करता है, ताकि वो एक रिदम को बनाए रखे. नेक्स्ट है हमारा आयरनी. आयरनी जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो ना केवल पोएम में ही नहीं बल्कि आपको चैप्टर्स जो होते हैं उसमें भी आयरनी देखने को मिलती है. चलिए बेटा देखिए आपका नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है आयरनी. अब आयरनी जो आपका लिटरेरी डिवाइस है वो ना केवल आपको पोएम में ही नहीं मिलेगा बट यू कैन आल्सो सी इन द चैप्टर आल्सो देयर इज अ आयरनी. व्हाट इज आयरनी? आयरनी जो होता है बेटा बेसिकली इट क्रिएट्स अ कंट्रास्ट. वो एक कंट्रास्ट क्रिएट करता है बिटवीन हाउ द थिंग्स सीम, कि चीज़ें हमें कैसी दिख रही है, एंड हाउ दे रियली आर, और वो सच में कैसी है. दे आर सीमिंग समथिंग डिफरेंट एंड एक्चुअली दे आर डिफरेंट, कि वो दिख कुछ रहा है और रियलिटी में कुछ और है. दैन इट इज़ अ आयरनी. लाइक आपका सिबलिंग है एंड ही हैज़ डन द थिंग कि जब मम्मी देखेगी तो शी विल श्योरली और डेफिनेटली बीट हिम, कि वो उसको मारेगी. बट यू सेइंग टू हिम, आप उसको कह रहे हो कि नो नो यू गो टू द मदर एंड शी विल फील प्राउड ऑफ यू, वो तुम्हें मतलब बहुत प्राउड फील करेगी तुमने ऐसा किया. बट आप व्हाट यू आर सीमिंग टू से दैट शी विल feel proud, but reality is that she will not feel proud, she will beat him. वो उसको मारेगी, वो proud feel नहीं करेगी. तो this is a irony. Irony is basically the things seems to be different and actually they are different. कि जो चीज़ें हैं वो what they seems to be they are not to be that, कि वो जैसा दिख रही हैं वो वैसा नहीं होती, actually वो different होती है. मीन्स इट इज़ अ मोड ऑफ अ स्पीच. ये मोड ऑफ स्पीच हम इस तरीके से बोलते हैं कि जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ऑफ दैट विच इज़ लिटरली कन्वे, जो सही मायनों में कन्वे किया जाना है उसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो दिखाया जाता है. दैन इट इज़ अ आयरनी. लाइक एग्जाम्पल, मदर विल बी हैप्पी टू हियर वट यू हैव डन. मम्मी बहुत खुश होगी जो तुमने किया उसको सुन के. बट एक्चुअल में क्या है, लिटरली वॉट इज कन्वे, इट इज़ टोटली अपोजिट. व्हेन मदर विल नॉट बी एट ऑल हैप्पी, लेकिन मदर जो है विल बी बिल्कुल भी इसमें हैप्पी नहीं हो. तो दिस इज़ एन आयरनी. नाइस वेदर व्हेन इट इज़ रेनिंग. मान लीजिए बारिश हो रही है और यू नो दैट वेदर इज़ नॉट गुड, कि वेदर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बट यू आर सीइंग, आप उसको आयरनी फॉर्म में बोल रहे हैं कि नाइस वेदर व्हेन इट इज़ रेनिंग. वेदर बहुत अच्छा होता है जब बारिश हो रही होती है. बट लिटरली व्हाट इज़ अ मीनिंग? मीनिंग इज़ डिफरेंट एंड इट इज सीम्स टू बी डिफरेंट. दिख कुछ रहा है और मीनिंग कुछ और है.
I if down so long it looks like up to me. I if down so long, मैं काफ़ी समय से किसी मैटर में बहुत ज़्यादा डाउन था. इट लुक्स लाइक अप टू मी, ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अप टू मी. मीन्स आप उस चीज़ में बिल्कुल ही डाउन है एंड यू आर फीलिंग like up to me, you are showing up to me but you are down. तो what is the actually and what you are showing, it is an irony. irony का मतलब कि जो चीज़ है, जो जैसा seems हो रहा है and the thing which is literally actually the thing is opposite to that, जो चीज़ है वो उसके बिल्कुल ही opposite है. तो पॉइंट जब इस तरीके से यूज़ करें, लाइनों से पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे कि मान लीजिए एक 10th क्लास में एक कस्टर्ड ड्रैगन की स्टोरी है एंड द ड्रैगन इज शोइंग दैट ही इज कॉवर्ड, कि वो कॉवर्ड है, बट द एंड एट द एंड यू विल फाइंड दैट द ड्रैगन सेव एवरीवन. ड्रैगन ने ही सबको बचाया, तो ही इज नॉट कॉवर्ड. मीन्स द शोइंग दैट ही इज कॉवर्ड बट एक्चुअली ही इज ब्रेव. एक्चुअली वो ब्रेव है, तो इट इज एन आयरनी. इट इज एन आयरनी. तो जो पॉइंट है, ही यूज द आयरनी, मीन्स ही इज शोइंग समथिंग एंड एट द एंड यू विल फाइंड that the thing is opposite to that. वो चीज़ जो है उसके बिल्कुल opposite है. It is the irony of the poem. It is the irony of a poem. Next आपका metaphor है. Metaphor is very important poetic device which usually came in your exam and which is mostly used by the poet. So what is metaphor? Metaphor is basically a comparison. When we compare the two things which is similar meaning same होना चाहिए, भले वो चीज़ अलग हो बट कहीं ना कहीं उनमें जो कंपेयर किया जा रहा है वो उसको उसके कंपेयर किया जा रहा है. लाइक एक लॉयन है एंड हिज पो लाइक अ वेलवेट, उसके जो पैर का पंजा है एंड इट इज़ सॉफ्ट लाइक अ वेलवेट. तो वेलवेट से कंपेयर किया गया उसके पॉ को. तो देर इज़ अ कंपेरिजन ऑफ पॉ विद द वेलवेट. देर इज़ अ कंपेरिजन of paw with the velvet and the same meaning is that it is soft. Softness से वो दोनों में comparison हो रहा है. When we compare two similar thing by saying one of them is other, कि एक चीज़ उसकी तरह is like as, like पो इज लाइक एज वेलवेट. तो पो किस तरीके से, वेलवेट की तरीके से. तो दोनों चीज़ों को सेम मीनिंग में कंपेयर किया जा रहा है कि दीज आर द टू सिमिलर थिंग, कि दोनों सिमिलर थिंग है. किस चीज़ से सिमिलर है, क्योंकि उनका मीनिंग लाइक गोल्ड इज गोल्डन. गोल्ड जो है वो गोल्डन है, तो यानी कि गोल्ड जो है वो बहुत प्रीशियस है. तो गोल्ड को कंपेयर किया गया गोल्डन से, ग्लोरियस से, प्रीशियस. उसका मीनिंग प्रीशियस है कि गोल्ड बहुत प्रीशियस है, तो इट इज़ कंपेयर विद गोल्डन. इसी तरीके से पो इज कंपेयर्ड विद वेलवेट. तो पो एंड वेलवेट को दोनों चीज़ों को बोला गया है कि ये सिमिलर थिंग्स है, इनके मीनिंग जो है वो सेम है. तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस किया गया है, यहाँ पर मेटाफर. लाइक ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीम द फ्यू स्टेप ऑफ हिज स्केच ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रिच. पैट्स ऑफ वेलवेट, पैट्स ऑफ वेलवेट. पैट्स ऑफ वेलवेट का मतलब ये है कि टाइगर्स पोज आर कंपेयर विद द वेलवेट. वेलवेट जितना सॉफ्ट होता है उतने ही उसके पोज सॉफ्ट है. पैट्स ऑफ वेलवेट, लाइक पैट्स इज लाइक अ वेलवेट. तो इट इज़ अ मेटाफर व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स एंड दे आर फाउंड टू बी सिमिलर, कि ये इसके समान है, इसकी तरह है और मीनिंग सेम है, देन इट इज़ अ मेटाफर. Next, you will see the example. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Ab the silence is golden and the freedom is sweet. There are the two metaphors. Silence is compared with golden and the freedom is compared with sweet. Silence is silence is golden and the gold is sweet. Freedom is sweet. Silence जो है वो golden है, मतलब silence जो शांति है वो इतनी glorious है जैसे कि golden color हो, जैसे कि मतलब गोल्डन के कलर से शांति को क्या करा गया, सिमिलर किया गया. दोनों का मीनिंग सेम है कि साइलेंस गोल्डन है, साइलेंट को इतना ग्लोरियस माना जाता है जैसे कि गोल्डन कलर. फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को कंपेयर किया स्वीट से. मीन्स अगर फ्रीडम होती है तो वो इस तरीके से है जैसे उसका टेस्ट एकदम मीठा हो. अगर हम कुछ चीज़ खाते हैं हमें मीठी लगती है, तो ऐसे ही फ्रीडम हमारे लिए उतनी ही मीठी होती है. तो फ्रीडम इज कंपेयर्ड विद द स्वीट एंड फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट. इसका मतलब फ्रीडम को ऐसा बोला गया जैसे कि वो टेस्ट में बहुत मीठी है. इसी तरीके से साइलेंस को ऐसा बोला गया है कि जैसे वो इतना ग्लोरियस है जैसे कि गोल्डन कलर. तो देयर इज अ कंपैरिजन, देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स विद द सेम मीनिंग. दो चीज़ों को सिमिलर बनाया गया है, उनका मीनिंग उससे सेम किया गया है. जैसे कि फ्रीडम को स्वीट इन टेस्ट से उसका मीनिंग सेम किया गया है, इसी तरीके से साइलेंस को
गोल्डन जो किया गया है, तो वो ग्लोरियस दिखा रहे हैं कि कितना ग्लोरियस कलर होता है, इसी तरीके से साइलेंस होती है। नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है बेटा, आपको जब पोएट कई बार ऐसा होता है दो वर्ड्स ऐसे यूज़ करता है पोएम में, कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड यूज़ करता है जो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग होते हैं, जैसे अगली एंड प्रीटी। अगली मीन्स जो सुंदर नहीं है, एंड प्रीटी मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल है। अगली एंड प्रीटी थिंग्स उसने पोएम में यूज़ करा, अगली एंड प्रीटी थिंग्स। तो दीज आर द टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स when the poet used the two contradictory words to describe one thing। एक ही चीज़ को दर्शाने के लिए उसने दो कंट्राडिक्टरी वर्ड का यूज़ करा जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग में है, तो उसको ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे, He stalks in his vivid stripe the few step of his gaze on pates of velvet, quiet in his quiet rage। अब quiet का मतलब शांत एंड rage का मतलब गुस्सा। क्या शांत कभी गुस्सा हो सकता है? जो इसके पास गुस्सा है क्या वो शांत हो सकता है? क्वाइट रेज, क्वाइट इज शांत एंड रेज इज गुस्से वाला। तो क्वाइट रेज, दीज आर द कंट्राडिक्टरी वर्ड्स एंड दीज आर यूज्ड टुगेदर टू हाईलाइट द वन मीनिंग, तो इट इज अ ऑक्सीमोरन। These are the some words which is also oxymoron, like act naturally। act का मतलब होता है कुछ act करके दिखाना, और act कैसे करना है? naturally। तो act naturally। इसी तरीके से alone together यूज़ करा कि one day there are the two friends who are alone together, जो कि अकेले भी है together। अब अकेले है तो साथ में कैसे होंगे, और साथ में है तो अकेले कैसे होंगे? तो ये दोनों ही कंट्राडिक्टिव वर्ड है। अमेजिंग ऑफुल, अमेजिंग बहुत बढ़िया, ऑफुल बिल्कुल बेकार, अमेजिंग ऑफुल क्लियरली कंफ्यूज। अब क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं हो सकता, कंफ्यूज है तो क्लियर नहीं हो सकता, तो ये भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। तो डार्क लाइट, अगर डार्क है तो लाइट कैसे होगा, और लाइट हुई तो डार्क नहीं हो सकता। डिफनिंग एंड साइलेंट, डिफनिंग होता है जो डीफ होता है जिसे सुनाई ना दे। अब साइलेंस तो ऑलरेडी ही शांत है, ना सुनाई देने वाला साइलेंस, ना सुनाई देने वाली शांति। तो डीफनिंग साइलेंस मतलब साइलेंस को दर्शा रहा है और डीफनिंग यूज कर रहा है। डीफनिंग का मतलब वो है जिसे सुनाई नहीं देता, और साइलेंस तो ऑटोमेटिकली साइलेंस हमें सुनाई नहीं देता, तो डीफनिंग यहाँ पर यूज कर लिया पॉइंट ने। तो इट इज अ ऑक्सीमोरन। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, दोनों अलग वर्ड्स है। फेयरवेल मतलब जब कोई आता है उसको फेयरवेल देना। रिसेप्शन मतलब जब कोई शादी करके आया तो उसके लिए रिसेप्शन देना। तो ये दोनों अपोजिट है। ग्रोइंग, ग्रोइंग है तो उसका मतलब चीज़ें बड़ी होगी, तो ग्रोइंग स्मॉलर, इसने छोटा बोल रखा है। एंड स्मॉल छोटा, क्राउड, क्राउड मतलब ज़्यादा। अब स्मॉल का क्राउड से कनेक्शन नहीं है, क्राउड है तो छोटा नहीं है, और छोटा है तो क्राउड नहीं है। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड है जो कि पोएट ने यूज़ करा है। इस तरीके से पोएम में दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो एक मीनिंग को हाईलाइट करते हैं, पर ये दोनों वर्ड कंट्राडिक्टरी होते हैं। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा? ऑक्सीमोरन। Look at beta, the next poetic device is onomatopoeia। What is onomatopoeia? It is referred to the words that sound like the things they are referring to। Means ये उन words को refer करता है जो उस चीज़ के sound को show करती है। Like कोई चीज़ भी fell into the river, हम river में fell मतलब गिरते हैं, then there is a sound of splash। स्प्लैश साउंड आता है। तो व्हेन द पोएट इज यूजिंग द साउंड, जब वो पोएट जो है उन चीज़ों जो उस चीज़ के तरीके का साउंड होता है, थिंग के तरीके का साउंड होता है, साउंड लाइक द थिंग यूज करता है उस चीज़ को रेफर करने के लिए, तो दैट मीन्स ही इज यूजिंग द पोएटिक डिवाइस दैट इज ओनोमेटोपिया। लाइक बेलिंडा एक लड़की है, पोएम है। बेलिंडा गिंगल्स till she shook the house and the blink said wick which giggling for a mouse, ink and mustard rudely as his age, when the custard cried for a nice safe cage। Miss Belinda जो है वो गिंगल्ड कर रही है, मीन्स हंस रही है, she is gingled till she shook the house, and ब्लिंक, विक, विक मतलब जो कि साउंड दिखाया गया है माउस का साउंड दिखाया गया है, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया गिंगल्ड, विक्ड, जो कि साउंड दिखा रहे हैं उस थिंग का। व्हेन द पोएट इज शोइंग द साउंड ऑफ अ थिंग, दैट इज ओनोमेटोपिया। You can see more example like the buzzing bee flew away, the sound of a bee, that is buzzing। The sack fell into the river with a splash। sack जो है सैक जो है बोरा है उसको फेंका गया रिवर के अंदर विद अ स्प्लैश, और पानी में कैसे साउंड आया? स्प्लैश। द बुक फैल ऑन द टेबल विद अ लाउड थम। अब इन वर्ड को आप बोल सकते हैं कि बुक कैसे गिरी, साउंड कैसे आया? द थम।
एंड द बुक फेल ऑन द टेबल विद अ लाउड थंप। तो हमारा फोकस हो गया कि साउंड कैसा आया, थंप। मीन्स पोइट जो है इन वर्ड का यूज़ कर रहा है, साउंड का यूज़ कर रहा है टू उस चीज़ को थिंग को स्पेसिफाई करने के लिए। दैट मीन्स ही इज यूज ऑन ऑनोमेटोपिया। ही लुक्ड एट द रोरिंग, द हार्ड डे को देख रहा है, एंड द रसलिंग लीफ, लीफ का साउंड कैसा आ रहा है, रसलिंग लीफ केप्ट मी अवेक। तो व्हेन दैट मीन्स द पोइट इज यूजिंग द साउंड विच इज स्पेसिफाइंग द थिंग्स की बुक जो गिरी है थंप साउंड आया, ही लुक्ड वो देख रहा है, रोरिंग, एंड द लीव्स का साउंड कैसा आ रहा है, रसलिंग, एंड द बीज बजिंग, एंड सेक ऑफ द रिवर व्हेन ही फेल द साउंड विल केम, दैट इज स्प्लैश। तो नाउ व्हेन द साउंड इज शोइंग to describe a thing, that means the poet is using literary device, that is onomatopoeia. 13 your literary device is paradox, and paradox is a word which is derived from a Greek word that is paradoxon, which means beyond belief. paradox को देख के ही समझ जाना beyond belief. when you see the things that is illogical, आपको ऐसा लगेगा illogical कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो पॉइंट आपको मजबूर कर रहा है कि आप उस बिलीफ से बियॉन्ड सोचे, उससे हट के उसके आगे सोचे, प्रैक्टिकली कुछ आगे सोचे. यू विल सी द थिंग्स बियॉन्ड द बिलीफ. दैट मीन्स ही यूजिंग द पैराडॉक्स. लाइक इट इज़ द स्टेटमेंट जो कि लोग पूछते हैं टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. बोलते थिंक आउटसाइड द बॉक्स मीन्स उसके जो सभी सोचते सेम बिलीफ है. व्हेन यू थिंक बियॉन्ड दैट बिलीफ, आप उस बिलीफ से अलग हटके कुछ सोचते, यू विल थिंक आउट ऑफ दैट. व्हेन यू आस्क द पीपल कि आप इसके आगे और प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, यू सीम्स दैट इट इज़ इलॉजिकल, आपको ये लॉजिकल लग रहा है, बट यू कैन थिंक बियॉन्ड दैट, आउट ऑफ द बॉक्स. एंड और इसको सोचने पे पॉइंट कैसे मजबूर करता है, वो आपको सिमिलरली इलॉजिकल चीज़ें देगा एंड येट एक्चुअली ट्रू प्रीमिसेस. एक्चुअली कुछ होगा और इलॉजिकली वो कुछ और दिखाएगा जिससे आप बियॉन्ड प्रीमिसेस सोचने पे मजबूर हो. जैसे यू विल सी द एग्जांपल्स. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. अब पैसे बचाओ स्पेंड करके. भाई स्पेंड करेंगे तो मनी कैसे सेव करेंगे. तो पॉइंट जो है वो ये शो करना चाहता है कि मीन्स आप खर्च भी करो बट यू सेव द मनी. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट मीन्स ये आपको इलॉजिकल लग रहा है बट पॉइंट इसमें आपको मजबूर कर रहा है. यू विल थिंक आउट ऑफ दैट बिलीफ एंड यू विल थिंक आउट ऑफ इट प्रैक्टिकल. इफ़ आई नो वन थिंग इट इज़ दैट आई नो नथिंग. अगर मुझे एक चीज़ पता है इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता है. तो वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे एक चीज़ कैसे पता है. लॉजिकली शो कर रहा है. दैट मीन्स पॉइंट पैराडॉक्स शो कर रहा है. ही इज़ शोइंग दैट यू विल थिंक आउट ऑफ द बिलीफ. मीन्स इस तरीके की सिचुएशन पोएम में क्रिएट कर देता है. यू थिंक दैट इट इज़ वेरी लॉजिकल, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एट द एंड जो है कुछ उसके आउट ऑफ जो है निकल के आ जाता है. दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड. अब ये शुरुआत है एंड की. अब शुरू है तो ख़त्म कैसे होगा. मीन्स वो मजबूर कर रहा है कि आप महसूस कीजिए. यू विल थिंक आउट ऑफ बिलीफ दैट कि अब एंड की बिगनिंग होने वाली है. मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट. अब मैन अगर एक साथ काम करेंगे तो वो अगर अलग अलग काम करेंगे. इफ़ दे वर्क टुगेदर और अपार्ट तो वो एक साथ कैसे काम कर सकते हैं. तो ही इज शोइंग दैट कि मैन जो है वो एक साथ भले काम ना कर रहे हो, मतलब वो एक साथ, इसने बोला मैन वर्क टुगेदर, मैन जो है वो एक साथ काम करे, वेदर चाहे वो एक साथ करे या ना करे. इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि सारे एक साथ इकट्ठे होकर काम करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं. वेदर दे आर वर्किंग टुगेदर और अपार्ट, चाहे वो एक साथ काम कर रहे हैं चाहे वो अलग काम कर रहे हैं, बट दे आर connected with that. तो that means he is showing something belief which is beyond that, which is practical, जो इसके कुछ हटके है, इसके कुछ अलग है. इसकी आपको इमेजिन करने पे मजबूर करेगा कि you will think different. What a pity that youth must be wasted on. कितना pity है youth must be wasted on the young, कि youth जो है सारा खर्चा अपने young पे कर रहा है. What a pity. तो he is also showing कि ये कोई pity वाली बात है कि youth अपने पे खर्चा कर रहा है. तो think out of that. इट कैन रेजिस्ट, आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग. मैं सबको रेजिस्ट कर सकता हूँ बट टेम्पटेशन, मैं लालच को रेजिस्ट नहीं कर सकता. अरे लालच को ही तो रेजिस्ट करना है, बट यहाँ पर ऐसी इलॉजिकल सिचुएशन दे दी कि यू विल थिंक
बियॉन्ड दैट, आपको उसके बियॉन्ड सोचना है कि आप सब कहते हैं कि हमें लालच को जो है रेजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसने बोला मैं सब रेजिस्ट कर सकता हूँ लेकिन लालच रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये इलॉजिकल चीज़ आ गई जो कि आपको मजबूर करता है, यू विल थिंक बियॉन्ड ऑफ दैट। तो पैराडॉक्स इज सिंपली मीनिंग थिंकिंग बियॉन्ड ऑफ दैट, जो चीज़ है उसके आपको आगे जाके सोचना है, यू विल नॉट थिंक दैट एंड when the thing is showing illogical, जब आपको illogical नजर आए, आपके लॉजिक में लगेगा अरे ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको कई और तरीके से दे रखा है, आपको मजबूर करे सोचने के लिए, दैट मीन्स द poet is using the literary device, that is your paradox। चलिए बेटा हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? कई बार ऐसा होता है जो नॉन ह्यूमन चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है, हम उसको ह्यूमन ट्रेट के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, तो इसका मतलब हम उसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। लाइक इट यूजेस ह्यूमन ट्रेट्स टू डिस्क्राइब द नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब हम ह्यूमन ट्रेट्स का यूज़ करते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स मीन्स ऐसी चीज़ें दिखाते हैं लाइक अ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन करता है, और हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं नॉन लिविंग चीज़ को। नॉन लिविंग चीज़ के अंदर हम ह्यूमन बींग्स के ट्रेट्स दिखाते हैं, तो इसका मतलब जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है वो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रहा है। लाइक द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल twig stiff with exertion, long cramped bow shuffling under the roof like newly discharged patient, half dressed moving to the clinic doors। अब देखिए, the leaf is staining towards a glass, leaf जो है वो ग्लास की तरफ स्टेन कर रहे हैं, स्मॉल ट्विंग स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी ट्विंग है वो एक्सर्शन के साथ जो है स्टिफ कर रही है। अब ये ऐसे दिखाया जा रहा है, एक्सर्शन तो कोई पर्सन ही होता है जो उसको स्टिफ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्विंग नॉन लिविंग है और इसको ह्यूमन ट्रेट के साथ, एक्सर्शन के साथ कंपेयर कर रहा जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ, और बो जो कि नॉन लिविंग है इसको ह्यूमन ट्रेट्स के साथ कंपेयर पर्सोनिफाई किया जा रहा है शफलिंग यूज़ करके, शफलिंग अंडर द ट्री, और शफलिंग तो ह्यूमन करते हैं, तो वो नॉन लिविंग है। तो जब नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन थिंग के साथ पर्सोनिफाई किया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसमें ट्विंक्स और बो जो है हैव बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द फॉग कम्स, फॉग आई ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट। अब यहाँ जो इट है वो फॉग के बारे में बोला जा रहा है, फॉग सिट्स। अब फॉग जो है वो बैठेगी कैसे? बैठते कौन है? ह्यूमन बैठते हैं, तो ह्यूमन ट्रेट के साथ कंपैरिजन हो रहा है फॉग का, तो ये भी आपका क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट haunches and then moves on, fog personified। तो in this stanza which is personified? Fog। So when you read the stanza you will find sometime the poet has personified the non-human with human traits। human traits के साथ उसको personify किया जाता है। जब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपका नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है वो है पोइटिक लाइसेंस। जो पोएट होते हैं उनके पास, या जो आर्टिस्ट होते हैं जो पोएम लिख रहे होते हैं, उनके पास एक लाइसेंस होता है जिससे वो कोई भी डिटेल, कोई भी वर्ड, कोई भी फैक्ट, सबको वो किसी भी चीज़ को डिस्टोर्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं जैसा वो चाहे अपनी रिदम को बैठाने के लिए, तो उसको हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे। Suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meouch cried Ink and oh, cried Belinda, for there was a parrot climbing in the window। तो यहाँ देखिए वर्ड है cried Belinda and climbing in the window। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, और विंडा जो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है वो विंडो के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बेलिंडा के साथ ही रिदम बनाना चाहता था, इसी वर्ड को रिदम में लेकर आना चाहता था, तो वो बेलिंडा नहीं लिखा, वो विंडो दिखाना चाहता है, तो विंडो के लिए उसने अपने आप ही वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर दी विंडा, जिससे रिदम नज़र आए। तो यहाँ पर उसके पास क्या है? पोएटिक लाइसेंस है। ही कैन मर्ज और ही कैन चेंज द वर्ड इन ऑर्डर टू मेक हिज मीटर और रिदम बनाने के लिए वो बेलिंडा
के साथ ही उसको रिदम करना था, इसलिए उसने विंडो को क्या लिख दिया, विंडा। तो ये पोइटिक लाइसेंस है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट must and failed with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mouse hold. अब देखिए हाउस होल्ड के साथ ही उसको रिदम बैठानी थी, तो माउस अपने माउस होल में रहता है, तो माउस अपने माउस होल में रहता है, तो उसने माउस होल्ड लिख दिया, जिसका मीनिंग माउस होल ही है। तो स्पेलिंग में चेंज कर दे इन ऑर्डर टू मेक हिज रिदम, इन ऑर्डर टू यूज द सेम वर्ड ही चेंज द इन द स्पेलिंग, तो दैट मीन्स द पोइटर हैज अ poetic license. So literary device which is used here, it is a poetic license. Next is your literary device, that is your repetition. Repetition से automatically you are judging that the word is repeating, जहाँ repetition हो, लगातार जो word use हो, ये literary device है, it is involved using the same word. जब same word, same phrase ओवर एंड ओवर अगेन कई बार यूज़ किया जाता है इन अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच, जब एक ही स्टैंजा के अंदर, पूरी पोएम में नहीं, विद इन ओनली अ वन स्टैंजा, व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड का रिपीटेशन हो या किसी फ्रेज का रिपीटेशन हो, तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। यू विल सी इट बाय एग्जांपल, what is the boy now? What has lost his ball? What is he to do? I saw it go merely bouncing and down the street, and the merely over there it is in the water. तो what फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में फिर से रिपीट हुआ what. व्हेन द सेम वर्ड इज रिपीटेड इन विद इन अ वन स्टैंजा में ही रिपीटेड हुआ अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स देयर इज अ रिपीटेशन, लिटरेरी device is used. Next देखिए, the best kinds of people are the warm and kind, they are always there and they never mind. The best kinds of people smile and embarrass, they support you with strength and grace. The phrase which is used here, the best kind in a particular stanza, एक ही स्टैंजा में जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज अगेन एंड अगेन रिपीट होता है तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। तो हेयर इट इज यूज विच इज अ रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट इज योर रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब है जब हम पूरी पोएम में देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, जो या तो लाइन होगी या कई सारी ग्रुप ऑफ लाइन होगी जो कि रिपीट होगी, तो एट द एंड ऑफ द स्टैंजा के एंड ऑफ द पोएम में या एट द एंड ऑफ अ सॉन्ग खत्म होने के बाद जब वो रिपीट होती है तो हम उसको बोलेंगे ये रेफ्रेन है। अब रिपीटेशन और रेफ्रेन में फ़र्क देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red and a Relio and Trulio little pet dragon. अगेन अगला स्टैंजा इसी पोएम का है, बेलिंडा ट्रिकल, शी ट्रिकल हिम unmercilessly, ink blinked and mustard, they rudely called him, they all sat laughing in the little red wagon, at the end Relio Trilio Cavalry Dragon. मीन्स पूरी पोएम में स्टार्टिंग के पैराग्राफ के एंड में रेलियो ट्रिलियो एंड सेकेंड स्टैंजा में रेलियो ट्रिलियो आ रहा है, तो ये रेलियो और ट्रिलियो जो वर्ड है ये रीफ्रेन है, और रीफ्रेन जो वर्ड है जब पोएम ख़त्म हो रही होती है या सॉन्ग एंड हो रहा होता है, और ये यूजुअली जो है लाइन होगी या ग्रुप ऑफ लाइन होगी जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक की पोएम में देखी जाएगी, और रिपीटेशन होगा तो हम इसको बोलेंगे रीफ्रेन। और जो हमने इससे पहले पढ़ा रिपीटेशन सिर्फ एक ही स्टैंजा में होगा, और रीफ्रेन जो होगा पूरी पोएम में अलग अलग स्टैंजास में देखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाटर हॉलोज स्टोन, विंड स्कैटर्स वाटर, स्टोन स्टॉप द विंड, वाटर विंड स्टोन, वाटर क्रेव्स स्टोन, स्टोन्स अ कप ऑफ वाटर, वाटर स्केप्स and is wind, stone, wind and water. So at the end of the first stanza, stone, wind and water, at the second stanza, stone, wind and water. So it is a repetition of the word or the phrase at the end, or at the end of the song, or at the end of the poem. In total poem, if we are seeing there is a repetition, then it is a refrain. Our last literary device is
सिमली, सिमली इज बेसिकली नॉट अ मेटाफर, नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। ये कोई मेटाफर नहीं है कि ना ही ये हाइपरबॉल है और ना ही ये पर्सोनिफिकेशन, ना ही नॉन लिविंग थिंग को किसी ह्यूमन ट्रेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ना ही किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, और ना ही मेटाफर मीन्स दो चीज़ों को सिमिलर मीनिंग दिखाया जा रहा है। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन आप देख सकते हो कि चीज़ को डायरेक्टली लाइक लगा के बोल दिया जाता है कि शी इज़ लाइक दैट, वो उसकी तरह है। तो व्हेन देयर इज अ लाइक एंड देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, यू इज सीइंग दैट इज अ सिमिली, इट ड्रॉज अ रिसेम्बलेंस, कि वो उसकी तरह रिसेंबल करते हैं, उसकी तरह दर्शाते हैं। बिटवीन दो चीज़ों को रिसेंबल किया जाता है ऐसे कह के कि एक चीज़ इज लाइक बी, थिंग ए इज लाइक बी, और अ थिंग ए इज एज थिंग बी, कि वो एज इसकी तरह एज या इज लाइक। तो लाइक इज डायरेक्ट कंपैरिजन विद दैट, एज मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन विद दैट, कि वो बिल्कुल उसके समांतर है, सिमिली है, वो उसको रिसेंबल कर रही है, दैट इज अ सिमिली। यू कैन सी द एग्जाम्पल, द लीफ is stretched toward the glass, small twig is stiff with exertion, long crammed was shuffling under the roof like newly discharged patient, like newly discharged patient। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ट्री को जो है पर्सोनिफाई किया जा रहा है, ट्री को कंपेयर किया गया है और लाइक लगा दिया गया है, और देखा जा रहा है कि ट्री जो है उसकी स्मॉल ट्विंग जो एक्सर्शन से स्टिफ कर रही है, और वो एक तरीके से जो दिख रहा है वो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह दिख रहा है। मीन्स ट्री इज टोटली कंपेयर लाइक अ ट्री इज लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, वो पूरी तरीके से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह है। तो हमने यहाँ पर वी कैन सी द लाइक वर्ड और वी कैन सी द एज दैट मीन्स इट इज अ सिमली। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ट्रीज आर कंपेयर टू पेशेंट, ट्रीज किसको किससे कंपेयर किया गया है, पेशेंट से। नेक्स्ट है ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स आर रश टू मीट हिम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब मून किसकी तरह ब्लॉक हो गया, लाइक अ मिरर। तो मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, दैट मीन्स इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। तो मून को कंपेयर किया गया है मिरर के साथ। तो जब व्हेन यू सी द डायरेक्ट कंपैरिजन कि इट इज लाइक दैट, इट इज एज दैट इज अ सिंपली, इट इज नॉट अ मेटाफर, इट इज नॉट अ पर्सोनिफिकेशन, इट इज नॉट अ हाइपरबोल। तो सिंपली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है लाइक या एज वर्ड लगा के डायरेक्टली बताया जाता है कि उसकी तरह है। or metaphor, hyperbole and personification I already told you. So by the end of this lecture we have covered all the poetic devices with a lot of example. Now when you read the poem you just judge these poetic devices, and in order to improve your skill of finding the poetic devices or literary devices you have to read lot of matter। आपको काफ़ी matter read करना चाहिए poem का, जिससे आप इन पोइटिक डिवाइसेस को ईजिली फाइंड आउट कर सके और लॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिए सो दैट इट कैन इम्प्रूव द वे टू फाइंड द लिटरेरी डिवाइस। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।